हाँ Am यस I बोला. audible? यस यस हाँ बोला. की आपल्याला ते 3 कॉलम मधलं रिलेशन येस आयडेंटिफाय करायचं होतं. ॲब्सोल्युटली. सो 3 कॉलम म्हणजे की जे समजा फोन जसं की टेक्नॉलॉजीमध्ये इन्क्लूड होतो, येस टेबल, येस चेअर हे फर्निचरमध्ये इन्क्लूड होतो आणि येस प्रोडक्ट आय डी ह्या सर्वांचा एक कन्सोलिडेट मिळून केलेला आहे. जसं युनिक. टेक्नॉलॉजीसाठी TEC, येस. फोनचा PH. पण ते 5816 जे आहे ना लास्टला नंबर्स ते कशावरून घेतलेले? ते कंपनीमध्ये इंटरनल त्यांचं काही लॉजिक असेल त्याच्यानुसार असेल. अच्छा, बट ओनली थिंग ठीक इज आहे, यू ठीक नीड टू अंडरस्टँड दॅट इज अ युनिक नंबर. ओके. ठीक आहे. दीज आर युनिक नंबर. सो ते युनिक असल्यामुळेच आपल्याला नंतर पुढे त्याचा फायदा होईल काय येस येस आयडेंटिफिकेशनसाठी. ॲब्सोल्युटली. Clear everyone. So homework was to find the relation between these three columns: country, region and market. Okay. So don't wonder कि ये, by the way, ये formatting वगैरह सबने try किया है कल. As in the home tab you can give that color font असेल तर ते तुम्ही set करू शकता color वगैरह. नसेल तर just let me quickly show you एक raw data वरती. If you have not tried, or I'm just showing you some example कि just a second, maybe we can take some example from here only. Yeah, हा raw data hai. Suppose this is a raw data, right? And I want to color this. So you can select the area, go to home tab and choose appropriate color. इकडून अशा colors तुम्ही choose करू शकता, or else if you want to give such colors like this, तर हे पण तुम्ही असे color देऊ शकता. And some border, font, aesthetic mostly in the home tab. Clear? Good. Then next, I had asked you to build the relation between country, region and market. Absolutely, if you observe closely, if you observe, suppose Australia and New Zealand, they are in the Oceania region, right? And similarly, you will find some other options such as Italy, I guess, Italy and some other country maybe in the southern Europe, right? So similarly, it's a group. Again, in the next column, if you observe region and market, Oceania you combine in Asia Pacific, and Southern Asia, Western Asia, again they are in the Asia Pacific. Okay, so can I say something like this? Suppose it is your village, okay, and village is a part of district, some district, and then district is a part of state. So there will be many districts, there will be many villages in this, right? Something like this. His structure, this is called a hierarchical data. This is called a hierarchical data. The relation, there are multiple columns. If you have a relation between multiple columns के बीच कुछ relation है, तो इसे hierarchical data बोलते हैं, right? Similarly, you can find the hierarchical data in these two columns as well, category and subcategory, because in a technology you consist phone and copier, right? In furniture you have table, chair, bookcase, right? So this is called a hierarchical data. So why it is important or why it is mentioned, क्यों दिया गया है, it is मतलब सिर्फ मैं chair लिख देता हूँ, why I need this category column, और मैं सिर्फ category column लिख देता हूँ and सब category क्यों चाहिए, why do you think, मतलब ऐसा क्यों डेटा में दिया गया है? सब We कैटेगरी से have no clear picture about the category. Okay, maybe you can use this information. I will give only country, why region and market is required. क्यों चाहिए ऐसा, क्या लगता है आपको, what do you think, क्या पर्पस हो सकता Hello. है? Yes. To Yes. analyze the proper product selling in which area, such as country, region. Okay, and yes, absolutely, this is one of the application. मान लो अलग अलग कंट्री और अलग अलग रीजन के हिसाब से आपको एनालाइज करना है डेटा. ओके, बट व्हाई यू वांट टू एनालाइज? अगर ज़्यादा सेल हो रहा है तो
स्टॉक उधर एरिया में ज़्यादा रखना चाहिए, अगर कम सेल हो रहा Okay, है तो okay. I फोकस guess, करना चाहिए कि उसका सेल yeah. कैसे। Who is answering? Okay, okay. Yes, Shiv Shankar. I want others to answer. Okay. Yes, offline क्यों लगता है? I want मतलब थोड़ा सोचिए कि क्या हो सकता है, क्यों दिया गया है? Because this is your job. ऐसा नहीं कि आपको कुछ रेडीमेड डेटा लेना है, उस पर कुछ फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया. This is not the job role. ये ऐसा नहीं है, right? यहाँ पे आपको खुद का एक इमेज और इमेजिनेशन चाहिए so that you can provide a good solution, right? ये कुछ थ्योरी और ऐसा डेफिनेशन नहीं है इसका कि ये डेफिनेशन तो रट्टा मार लिया 5 मार्क मिल गया. ओके, ओके. अपने आई को वांट एनालाइज अदर्स टू करना है। आंसर. ये अक्षय, जस्ट अ सेकंड. व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट डू यू थिंक? थिंक फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव. मान लो आपका एक कंपनी है, वो कंपनी अलग अलग कंट्रीज में है, तो आप कैसे यूज करोगे इस डेटा को? ये इम्पोर्टेंट है. यस. Maybe to calculate the distance between different ओके, stores and store we wanted at. ओके, ओके, कितने easily और कितने कम time में वो आ जाते ओके. मे बी, या मतलब मान लो आपको कल को कुछ क्विक कॉमर्स जैसा कुछ रन करना है, 10 मिनट्स डिलीवरी. सो यू शुड नो कि कौन से एरिया से ऑर्डर आ रहा है, कहाँ पे वो स्टोर होना चाहिए, राइट? समथिंग लाइक दिस. जैसे अभी वो फ्लिपकार्ट का आ गया है ना, फ्लिपकार्ट मिनट्स वगैरह. सिमिलरली कुछ मार्केटिंग आप मतलब कुछ ऐसा बिजनेस एक्सपांड करना है तो यस. एंड व्हाट डू यू थिंक? कैन वी से somebody Akshay has rightly mentioned, we want to understand the business or the sale according to region, according to country, right? So this is the absolute like on point like mentioned. but क्यों समझ में आना है, क्यों मतलब मुझे कंट्री वाइज आइडेंटिफाई करना है कि कौन से कंट्री में, कौन से रीजन में क्या बेच रहे हैं? क्योंकि हर एक कंट्री, हर एक रीजन का अपना अपना कल्चर है, अपना अपना एक फ्लेवर है. जो चीज इटली, जापान में वगैरह खाते हैं वही इंडिया में खाते हैं क्या? नहीं. वी ईट समथिंग एल्स, राइट? हमारे रिक्वायरमेंट्स अलग है, हमारे लाइफस्टाइल अलग है, हमारा वेदर अलग है. सो वी हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट. जो यूएस जापान में चलेगा वो इंडिया में चलेगा ही, ऐसा नहीं है ना. सो जब भी आप मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह रन करते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड द जियोग्राफी. उसका टेस्ट रहता है, लोगों का कल्चरल रहता है, वेदर का इम्पैक्ट होता है उनके लाइफ पे. तो प्रोडक्ट्स, उसके रिक्वायरमेंट्स, उसके सर्विसेज अलग होते हैं, इकोनॉमिकल कंडीशंस अलग है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन. जो यूएस में लोग खरीदते हैं वही इंडिया में खरीदते हैं क्या उतना पे करके? नहीं, राइट? So you need to understand all those things. That's why such hierarchical data is maintained. जहाँ पे अलग अलग रीजन, अलग अलग मार्केट के हिसाब से आप कुछ एनालाइज करके इनपुट दो, राइट? सिमिलर केस विद द टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट. कौन से प्रोडक्ट कैटेगरी, अभी मान लो इफ फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो जनरली फर्नीचर वगैरह, टेलीफोन, सॉरी, फर्नीचर एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट ज्यादा जाते हैं, ऑफिस सप्लाईज वगैरह नहीं जाते. कुछ जून जुलाई का सीजन है, वहां पे ऑफिस सप्लाईज वगैरह ज्यादा डिमांड में रहे, राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस सीजनल पैटर्न्स. इसके लिए अलग अलग हायरार्किकल डेटा आपको दिया जाता है. दिस इज रिलेटेड टू योर बिजनेस, योर मार्केट, आप क्या बेच रहे हो, कहाँ पे बेच रहे हो, इससे ये रिलेटेड है, राइट? सो दैट्स व्हाई जनरली कंपनीज मेंटेन. इसके बाद और एक लेवल पे ये डेटा मेंटेन किया जाता है हायरार्किकल, so that they can understand your performance. मतलब मान लो एक एमएनसी है तो वहां पे क्या रहते हैं? कंट्री हेड रहता है, रीजन हेड, जैसे मैनेजर, सीनियर मैनेजर, टीम लीड, वाइस प्रेसिडेंट, हायरार्की रहता है ना. फॉर एग्जांपल एक कंपनी ओनर है, राइट? सपोज ही इज अ कंपनी ओनर, राइट? कंपनी ओनर है, यहाँ पे उनके अंडर 3-4 हेड रहेंगे, मे बी मार्केट हेड, रीजन हेड. तो उस हेड के अंडर, कंट्री हेड के अंदर 2-3 टीम लीड रहेंगे, राइट? अलग अलग रीजन के, साउथ रीजन का हेड, वेस्ट का हेड, ईस्ट का हेड, जो भी हेड है, राइट? फिर इस हेड के अंदर और 3-4 लोग रहेंगे, सेल्स वाले 8-10 लोग रहेंगे, राइट?
So this is how hierarchy is maintained. तो इन सब का परफॉर्मेंस एनालाइज करना है तो अगेन आपको ये हायरार्की मेंटेन करना पड़ेगा, कौन से रीजन से ये प्रोडक्ट बेचा है, कौन से ऑफिस से ये बेचा है, किसने बेचा है, कौन हेड था उसका, सो दैट कल जाके आपको समझ में आए, राइट, कि इस कंट्री में ये मटेरियल ज्यादा बेच रहा है, इस कंट्री में ये आइटम लॉस मेकिंग है, राइट. So that's why to maintain the hierarchy in the organization as well as market में आपको ये hierarchical data दिया जाता है, okay, along with all these different parameters. Clear? समझ में आया? Online इसका importance समझ में आया? Yes. Excel, Yes, sir. I just want to make you clear, Excel is not about formulas. आप जो data analysis में Excel सीखने वाले हो वो formula वगैरह से related नहीं है. फॉर्मूला लिखना, वो कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करना, दैट इज बाय डिफॉल्ट, ये आपको आता ही है, मतलब यू विल लर्न, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस. और उसका आपको जॉब में यूज ऐसा नहीं कि कोई आपको देगा हाँ ये डेटा क्लीनिंग करके दो, ऐसा नहीं होगा. जनरली यूर जॉब विल बी इंटेलेक्चुअल रहेगा. इंटेलेक्चुअल मतलब जहाँ पे आपको सजेशन देना है, आपको ऑब्जर्व करना है क्या हो रहा है डेटा में, पैटर्न्स, ओके, क्या पैटर्न्स है, हाउ द ट्रेंड इज, क्या ट्रेंड है, कौन सा फैक्टर अफेक्ट कर रहा है, ये सब आपको एक विजुअल रिप्रेजेंट करना है. विजुअली कैसे करना है वो देखेंगे जब आप पावर बीआई वगैरह देखेंगे, बट अभी के लिए ये माइंडसेट आपको क्रिएट करना है. जब भी आप डेटा देखोगे यू शुड नो, यू कैन स्टार्ट विद डेटा अंडरस्टैंडिंग, फिर उसके बाद ये हायरार्किकल डेटा है कि नहीं है, उसके बाद आता है टाइप ऑफ डेटा जो अब हम भी देखने वाले हैं. व्हाट इज दिस टाइप और क्यों ये टाइप इंपॉर्टेंट है. Okay, let me share you. This is a data set, a similar data set है जो आपको मैंने कल शेयर किया था, बट इसमें थोड़े चेंजेस हैं. Okay, let's see what changes are. कल आपको मैंने कंट्री, रीजन और मार्केट के बारे में बताया था, बट यहाँ पे एक और कॉलम एडिशनली दिया गया है विच इज कॉल्ड ऑर्डर डेट. ओके, तो इसका कॉलम नेम पढ़ के आपको क्या समझ में आ रहा है? ऑर्डर डेट, यस, द डेट ऑन विच ऑर्डर इज प्लेस, मतलब किस दिन ऑर्डर आपको दिया है, राइट, जो भी कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है. जनरली आपने डेटा देखा होगा समथिंग लाइक दिस. डेट जनरली ऐसे लिखते हैं, राइट, और कहीं पे भी आपने एक्सेल में काम किया होगा तो डेट ऐसा है. बट आपको जो डेटा दिया गया है क्लाइंट से, उसमें अंदर ऐसे डेटा दिया गया है. सम नंबर्स आर देयर. कैन यू सी दिस नंबर्स? Has anyone come across such issue? Okay, किसी ने ऐसा देखा है क्या? ऊपर डेट लिखा है बट नीचे कुछ नंबर्स वगैरह मेंशन किया है? No, sir. Okay. Do you think it is possible? हो सकता है क्या ऐसे कभी कि सिर्फ ये एज अ एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे? हो सकता है, डेटा ऐसा ही मिल सकता है. Okay, okay, that's good. So just to clear you, 80% ऑफ द टाइम सबको ऐसा ही डेटा मिलेगा. ऊपर कॉलम नाम अलग रहेगा, नीचे कुछ अलग ही रहेगा उसके. ओके, सो दिस इज वेरी मच पॉसिबल. और ये क्यों आता है इशू? दिस इज बिकॉज जो भी आप डेटा आपको एक्सेल में दिया जा रहा है, लेट्स सपोज आपको डेटा एक्सेल में आया है, ओके, ये डेटा जब भी कलेक्ट होता है, दिस कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्स. फॉर एग्जाम्पल, मान लो लेट्स से ये अमेजोन का डेटा है, ओके, बट आप अमेजोन का जो डेटा डाउनलोड करोगे और जो भी कस्टमर आपका है, वो जो ऑर्डर प्लेस करता है, वो क्या करता है? इधर वेबसाइट यूज करता है, एंड्रॉइड ऐप यूज करता है, मोबाइल यूज करता है, राइट. तो उसका डेटा कहीं ना कहीं आप ऑर्डर प्लेस करोगे तो इट विल बी स्टोर्ड इन सम प्लेस. जनरली जब आप एसक्यूएल पढ़ोगे तो आपको डेटाबेस नाम का एक कंसेप्ट समझ में आएगा. जनरली इट इज स्टोर्ड इन अ डेटाबेस. ओके, गूगल ड्राइव की तरह रहता है. जैसे आप फोटो निकालते हो, गूगल फोटोज या गूगल ड्राइव में जाता है ना, वैसे ही कंपनीज में जब आप ऐप से कुछ ऑर्डर करते हो, ऐप, वेबसाइट, उनके कोई भी प्लेटफॉर्म से, तो एक डेटा बेस में वो डेटा जाता है. ओके, सेम एज अ गूगल ड्राइव. एंड जब भी वो गूगल ड्राइव और जो भी डेटाबेस है वहां से जब आप डेटा कॉपी करते हो, दैट टाइम दिस इशू कम्स. क्यों होता है? क्योंकि एसक्यूएल और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और डेटाबेस भी अलग अलग टाइप के होते हैं. तो उस डेटाबेस किसी और कंपनी बनाता है, फॉर एग्जांपल जनरली अमेजोन बनाता है,
अमेजोन का AWS नाम सुना होगा तो समझ में आएगा। ओके, इफ नॉट सर्च इट व्हाट इज AWS। ये क्या करता है, जैसे आप गूगल आपको गूगल ड्राइव देता है ना, वैसे अमेजोन कंपनीज को डेटाबेस देता है डेटा स्टोर करने के लिए। ओके, AWS अमेजोन का रहता है। ओके, कैन यू म्यूट, somebody's echo is coming। ओके, वैसे अमेजोन का डेटा रहता है। बट वो हो गया अमेजोन और कुछ डेटाबेस। ये हो गया माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया ना एक्सेल। तो इन दोनों के बीच सेम चीजें रहेंगे, ये कैसा होगा? सो इट्स नॉट पॉसिबल टू ऑलवेज मेंटेन द डेटा टाइप। मतलब अमेजोन जिस फॉर्मेट में नंबर सेव करता है वो कुछ अलग हो सकता है, एक्सेल जिस फॉर्मेट में नंबर सेव करता है वो कुछ अलग हो सकता है। एंड जब भी आपने ऑब्जर्व किया होगा, मान लो आपने कुछ वर्ड में रिपोर्ट बनाया है और इंटरनेट से कुछ कॉपी किया है, कॉपी करके जब पेस्ट करते हो तो उसका फॉन्ट चेंज होता है, उसका थिकनेस चेंज होता है। ये क्यों होता है? बिकॉज बोथ टेक्नोलॉजीज यूज समथिंग डिफरेंट। दोनों टेक्नोलॉजी जो यूज करते हैं, डेटा टाइप्स बोलते हैं वो अलग अलग। तो हर एक टेक्नोलॉजी का अपना अपना डेटा टाइप रहता है। ओके, तो एक्सेल के क्या डेटा टाइप्स है? लेट मी शो यू कैसे एक्सेस करना है। कोई भी डेटा सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, गो टू फॉर्मेट सेल्स, दिख रहा है यहाँ पे, देखिए राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स, यहाँ पे कोई भी डेटा आप सिलेक्ट करके राइट क्लिक करोगे तो आपको दिखाई देगा फॉर्मेट सेल्स। ओके, जस्ट अ सेकंड। या तो ये डेटा टाइप्स अवेलेबल इन एक्सेल है। ये एक्सेल के डेटा टाइप्स। डेटा टाइप इज नथिंग बट आइडेंटिफिकेशन, जो भी डेटा आपको आ रहा है उसका आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम? नंबर कर सकते हैं, करेंसी कर सकते हैं, डेट है, टाइम है, परसेंटेज है, टेक्स्ट है। कुछ आपको स्पेशल खुद का बनाना है तो वो भी ऑप्शन नीचे है। ओके, दिस इज अ डेटा टाइप। सिमिलरली अब जब डेटाबेस एसक्यूएल के बारे में हमने पढ़ा, और सॉरी एसक्यूएल के बारे में हमने जो डिस्कस किया, उसके डेटा टाइप्स आप देखोगे तो वहां पे अलग है। तो वहां पे नंबर नाम का कुछ नहीं है, देयर इज समथिंग कॉल्ड इंटीजर, फ्लोट। ओके, देन टेक्स्ट के लिए Sting. varchar, char, राइट, स्ट्रिंग। तो हर एक टेक्नोलॉजी डेटा आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग डेटा टाइप्स यूज करता है। ओके, पाइथन आप जब आगे पढ़ोगे तो पाइथन के कुछ अलग है। पाइथन में इंटीजर एंड फ्लोट सेम है, कॉम्प्लेक्स नाम का आता है। स्ट्रिंग सेम है, स्ट्रिंग यहाँ पे भी और वहां पे भी नहीं, यहाँ पे टेक्स्ट है वहां पे स्ट्रिंग है। डेट टाइम ऐसा कुछ नहीं है पाइथन में। देन फ्रैक्शन नहीं है, परसेंटेज नहीं है। सो इट डिपेंड्स। तो मैं मान लो कल आपने कुछ एक्सेल में परसेंटेज एज अ डेटा टाइप सेव किया है यहाँ पे, ओके, और वो डेटा आपने पाइथन में लिया, बट पाइथन में तो ऐसा कुछ है ही नहीं परसेंटेज। तो वो क्या करेगा? एक डिफॉल्ट नंबर के साथ चेंज करेगा। सिमिलरली यहाँ पे जो हुआ है, किसी और टेक्नोलॉजी में डेट सेव हुआ है बट एक्सेल उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, तो इसलिए उसने रैंडमली एक नंबर अलोकेट किया है। इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट सम गार्बेज, नंबर अलोकेट हुआ है। सो दिस इज अ वेरी कॉमन इशू। आप जब यूज करोगे अलग अलग टेक्नोलॉजी, जब डेटा ट्रांसफर होगा, देन यू विल रियलाइज कि ये बहुत इशू क्रिएट करता है। ओके, और दिस इज द रूट कॉज। ओके, yes, शिव शंकर, you have any doubt? Yes, sir. So, मतलब ये डेटा टाइप्स को इनकोडिंग कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कौन सा डेटा है करते Just a हैं? second. Yes, we'll come back to that. So everyone clear what is a data type और ये क्यों आ रहा है? So next step, आपके जो एनालिसिस में पहला स्टेप था डेटा अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड स्टेप है डेटा फॉर्मेटिंग। तो ये आपका काम है कि ये डेटा को आइडेंटिफाई करना है, उसे अप्रोप्रिएटली फॉर्मेट करना है। ओके, तो लॉजिकली स्पीकिंग ऑर्डर डेट में क्या होना चाहिए? डेट होना चाहिए। तो यू नीड टू सिलेक्ट दिस डेटा। ओके, राइट क्लिक, क्लिक ऑन फॉर्मेट सेल्स एंड अप्रोप्रिएट डेटा टाइप आपको सिलेक्ट करना है। क्या होगा अप्रोप्रिएट डेटा टाइप इसके लिए? डेट। यू कैन Date. डेट। तो डेट के भी अलग अलग वेरिएशन है, यहाँ पे आपको जो चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके,
लेट मी सिलेक्ट दिस वन, प्रेस ओके। ओके, ये देखिए ऐसा आ रहा है। ओनली थिंग इज यू नीड टू जूम इन, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो ये थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे। क्लियर, दिस इज हाउ इट लुक्स। हो गया। So again, your job is to identify the exact data types so that you can easily avoid the issues. आगे जाके ये जब आप calculations करोगे, for example, ये देखिए आपने इसे फॉर्मेट नहीं किया और इस पे आप फॉर्मूला लगाओगे तो ये वर्क होगा। I will show you सम का फॉर्मूला, ये देखिए। But does it make any sense? वर्क तो हो रहा है, राइट। सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप पूरा डेटा को फॉर्मेट कर लीजिए सो दैट अननेसेसरीली कोई भी फॉर्मूला उस पे अप्लाई ना हो, राइट। क्लियर, कैसे करना है? सिलेक्ट द डेटा एंड राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स एंड सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट टाइप। ओके, क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन? सो लेट्स डू क्विक चेक। अलग अलग डेटा टाइप हम सेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स यूज समथिंग एल्स, या एक एचआर का डेटा सेट है। कल किसी ने होमवर्क किया होगा तो उन्हें ये समझ में आया होगा, एक एचआर का डेटा है। तो चलिए क्विकली बताइए, दिस इज अ डेटा सेट फ्रॉम अ कंपनी, कंपनी का डेटा सेट है, उसमें अलग अलग एम्प्लॉइज के इंफॉर्मेशन दिया है। तो क्या होगा इसका डेटा टाइप? फर्स्ट नेम क्या हो सकता है? क्विकली चेक। बाय द वे सिलेक्ट कर दीजिए पूरा डेटा, शॉर्टकट यूज कर सकते हैं और मैन्युअली माउस है तो माउस से भी आप कर सकते हो, राइट। शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो ये शॉर्टकट है, पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल शिफ्ट कंट्रोल डाउन, देन राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स एंड टेक्स्ट, राइट। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्यों टेक्स्ट है यहाँ। गुड, देन नेक्स्ट आगे इसका क्या होगा? लास्ट नेम, इनिशियल्स वगैरह का, मे बी ऑपरेशंस भी देख सकते हो। टेक्स्ट इज नथिंग बट द अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट्स को टेक्स्ट बोलेंगे। ओके, सो ये पूरा सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट कंट्रोल डाउन, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स एंड टेक्स्ट, राइट। गुड, देन जेंडर यहाँ पे है, कैन आई से दिस इज ऑल्सो टेक्स्ट? क्लियर, सो either you can select the data, shift control down, right click format cells, और इसका एक शॉर्टकट भी है, होम टैब में आप जाओगे ऊपर, होम टैब यहाँ पे, देन कम टू दिस सेक्शन, ये देखिए ये शॉर्टकट यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते, ये देखिए टेक्स्ट, यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते, ओके, बोथ वेज। क्लियर एवरीवन? गुड, देन नेक्स्ट कम बैक टू दिस टोटल एक्सपीरियंस, क्या होगा इसमें? Is it a text? No. So ये क्या होगा फिर? Number होगा, right? number. numbers. So select then, shift control down, right click, format cells, number, right? ये देखिए यहाँ पे, and number में आप डेसिमल पॉइंट भी सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल .00 आया है ना 2 बार, ये भी आप चेंज कर सकते हो। ये देखिए, जनरली ईयर और एक्सपीरियंस और एज डेसिमल पॉइंट में नहीं दिया जाता, राइट। आप ऐसा नहीं बोलते ना 31.447 ऐसा कुछ एज, सो इट इज अ नंबर, सो यू नीड टू एडजस्ट अकॉर्डिंगली, प्रेस ओके, राइट। सिमिलरली एक्सपीरियंस, ये भी एक नंबर आप दे सकते। गुड, देन व्हाट अबाउट ग्रेड? यहाँ पे तो दोनों है, नंबर भी है और टेक्स्ट भी है। यस, ईदर यू कैन डू अ कस्टम और बेस्ट वे कीप इट एज इट इज। जनरल नाम का एक डेटा टाइप है जो बाय डिफॉल्ट रहता है, इफ यू आर नॉट श्योर कि उसे क्या करना है, सो यू कैन कीप इट एज अ जनरल। ये देखिए सबसे पहले वाला है जनरल, ओके, डोंट चेंज इट, इट इज लाइक सब उसमें अकोमोडेट हो जाएगा, नंबर, टेक्स्ट, जो भी आपको आइडेंटिफाई करना है वो। आपको खुद का डेटा टाइप बनाना है, बना सकते हो, बट वुड नॉट रिकमेंड एट दिस स्टेज। आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा, यू विल स्टार्ट यूजिंग दैट फंक्शनैलिटी,
Okay, good. Then again here some issue is there. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कुछ नंबर्स आ रहे हैं, राइट? क्या हो सकता है फिर ये, कैसे इसे फिक्स करना है? फॉर्मेट सेल्स, राइट? तो इसे कैसे फिक्स करना है? You can select the data, shift control down, right click, format cells and date, right? So this is how you can get it. Date of birth, हेलो yes. सर, अगर हम डेट्स का डेटा टाइप दूसरा कौन सा टेक्स्ट वगैरह सेलेक्ट करेंगे तो वहां पे एरर शो होगा क्या? नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। टेक्स्ट और जनरल में कुछ नहीं होगा। फिर आप ठीक है, बोलोगे सर क्यों ही डेट करना है, व्हाई द डेट? करेंसी वगैरह पे ठीक है। आएंगे, जस्ट अ सेकंड। हाँ सर, सो टेक्स्ट भी चलेगा, बट ओनली ये जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो इसका एडवांटेज आगे जब डेटा समराइजेशन करोगे आई विल शो यू, ओके, कि आपने यहाँ पे कुछ गलत किया तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ओके। बट गुड क्वेश्चन। यस। चलो, डेट ऑफ बर्थ मतलब आपने कुछ गलत आइडेंटिफाई किया तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है ये मैं आपको बाद में जब एक एग्जांपल के साथ आई कैन शो यू। शिफ्ट कंट्रोल डाउन, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स एंड डेट। चलो, गुड। देन क्विकली अभी बताइए कि इसका डेटा टाइप सीटीसी। सीटीसी का डेटा टाइप क्या रहेगा? सीटीसी इज नथिंग बट द कॉस्ट टू कंपनी और सैलरी, जो आपको सैलरी मिलता है उसे कंपनी में सीटीसी बोलते हैं। तो क्या होगा इसका डेटा टाइप? numbers, नंबर, शिफ्ट कंट्रोल डाउन, currency, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स। ओके, आई कैन सी मल्टीपल आंसर्स, नंबर्स, करेंसी। टेक्स्ट हो सकता है क्या? विल बी अ टेक्स्ट। आप यहाँ पे कुछ भी Yes. टाइप कर सकते हो, इट डजंट मैटर। इफ यू सिलेक्ट परसेंटेज Yes, आल्सो sir. इट विल टेक, बट ये परसेंटेज है क्या? नहीं है ना। हाँ, नहीं, No. बाय द वे somebody asked me in previous batch, सर क्या मैं परसेंटेज सिलेक्ट कर सकता हूँ? यू कैन सिलेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस, बट डज इट मेक एनी सेंस? परसेंटेज कब सिलेक्ट करना है? जब आपने एक्चुअल परसेंटेज कैलकुलेट किया है। कैसे करते हैं परसेंटेज कैलकुलेट? समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग ना। होप यू नो बेसिक, उतना बेसिक में अभी आई गेस नॉट रिक्वायर्ड टू गो, राइट? तो परसेंटेज होगा तो वो सिलेक्ट आप कर सकते हैं। गुड, विल कम बैक टू द पॉइंट। सीटीसी आपका जो सैलरी रहेगा वो नंबर रहेगा कि कुछ और रहेगा? I guess accounting. लेट्स से आपको जॉब लगा है कहाँ पे? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, यस। numbers आपने में काम numbers किया में है, राइट? एक महीना आपने काम किया, एट मंथ एंड यू गॉट अ सैलरी, राइट? सैलरी मतलब मैसेज आया आपको, है ना, कि दिस इज क्रेडिटेड। तो ये क्या है, नंबर है या करेंसी है? बट ये तो नंबर है, आपके मैसेज में तो नंबर दिखाई दे रहा है ना। Currency. तो क्या डिफरेंस है क्विकली नंबर और करेंसी में? Sir, in the numbers, there is no comma. Currency, there is a comma in some Okay. different things. ओके So we can detect the exact currency. ओके ओके, बट और थोड़ा लॉजिकली सोचिए। Currency is defined by the country. ओके ओके, करेंसी का कोई साइन ही नहीं नहीं इधर। नहीं, आपको जो सैलरी मिला है उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। आपको जो Numbers, सैलरी मिला है वो numbers नंबर में है, करेंसी है? number ओके, numbers इफ यू से नंबर, मैं एक पेपर लेता हूँ, उस पे वो नंबर लिखता हूँ, जो भी आपका सैलरी है 10 लाख रुपए दे देता हूँ पेपर आपको, चलेगा? नंबर ही है ना। आपने क्या बोला? नंबर। यस, आपका सैलरी नंबर है या करेंसी है? तो सिमिलरली sir, currency. करेंसी। ओके, फिर क्या डिफरेंस है? Currency. Sir,
let me give you one more example. चलो, आपका जॉब लगा है, आपको जो भी है करेंसी है, नंबर है, जो भी मिला है आपको मिला है मंथ एंड में, राइट? आपने अभी डिसाइड किया आपको पार्टी देना है, राइट, आपके फ्रेंड्स को। तो आप गए होटल में, लेट्स से 5 स्टार होटल कोई भी आप ले लो, वहां पे गए, सब लोगों ने पार्टी किया, खाना खाया, बिल आ गया आपके पास। नाउ यू वांट टू पे बिल, ओके? आप मान लो आप कहीं मैरियट गए, ओके? वहां का बिल 30,000 रुपए आया है, 50,000 आ गया, लेट्स से आपने पूरे सबको दे दिया। देन यू रियलाइज आपके अकाउंट में सिर्फ 40,000 है, राइट? विल दिस बी पॉसिबल टू पे? आपने यू स्कैन किया, 50,000 आपको पे करना है, बट आपके अकाउंट में 40,000 है, तो वो जाता है क्या? जाना चाहिए, नंबर ही है ना 40,000, इट्स ओनली नंबर, राइट? क्या था, 40,000 आपके अकाउंट में है, 50,000 आपको देना है, तो 40,000 माइनस 50,000 आना चाहिए, माइनस 10,000 आता है ना आंसर। इफ इट इज अ नंबर आ रहा है माइनस 10,000, तो क्यों नहीं होता फिर? अभी ये तो बहुत बड़ा हिंट है, so that you can understand what is the difference between number and currency. Yes, जो बैंक में आप Currency cannot be a बैलेंस चेक negative. करते हो वो Go in नंबर है, negative. करेंसी है। यस, सो जस्ट टू गिव यू द हिंट, और मतलब क्लैरिफाई करने के लिए, बोथ आर सेम डेटा टाइप बट डिफरेंट मीनिंग, और ये मीनिंग डिसाइड होता है उसके ट्रांजैक्शनल वैल्यू पे, ओके? करेंसी का एक ट्रांजैक्शनल वैल्यू है, मतलब यू कैन नॉट ट्रांजैक्ट 50,000 की जगह मैं 40,000 देता हूँ, 10,000 बाद में देता हूँ, ये ऐसा नहीं होता करेंसी में, बट नंबर्स के केस में वो होता है, राइट? तो बिजनेसेस में दोनों चीजें अलग है। द नंबर इट वी आर शोइंग इट हियर, दिस इज अ करेंसी। फिर आगे जाके ये इंडियन है तो इंडियन करेंसी बोलिए, डॉलर है तो डॉलर, वट एवर यू कैन चूज इट, राइट? तो आपका सैलरी है, इट हैज अ ट्रांजैक्शनल वैल्यू, तो इसलिए ये करेंसी है, इट इज नॉट अ नंबर। क्लियर? होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड करेंसी। ओके, इसके बाद अकाउंटिंग वगैरह भी आता है, बट अगेन वो थोड़ा और बहुत, इफ यू आर इनटू कॉमर्स बैकग्राउंड तो आपको और आगे जाके डिफरेंस बिटवीन करेंसी एंड अकाउंटिंग भी पता चलेगा, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, राइट? तो वो not required at this stage. You can choose a currency here, and as this is an Indian company, I will select a rupee and press OK. तो ये हो गया आपका salary. और इसका करेंसी का इंपॉर्टेंस ये है कि द मोमेंट यू अप्लाई एनी फॉर्मूला ऑन दिस, वो सिंबल के साथ आएगा, डॉलर के साथ, ओके? ऑटो फॉर्मेटिंग हो जाएगा। क्लियर? गुड। चलो, लेट मी शो यू फ्यू मोर एग्जांपल्स। है क्या डेटा सेट्स कहीं पे? ओके, कल का ही जो एग्जांपल था, हाँ, यस, यहाँ पे अभी बताइए, दैट्स गुड। नाउ ये व्हाट इज सेल्स क्या है, नंबर है या करेंसी है? यस, नंबर है या करेंसी है? नंबर। डज इट हैज अ वैल्यू, मतलब ये ट्रांजैक्शन करके आया है क्या, किसी ने कुछ दिया है, किसी ने लिया है, ट्रांजैक्शन है क्या इसमें? नहीं सर, ये क्वांटिटी है। No, sir, this is number. नहीं, क्वांटिटी नहीं, क्वांटिटी अलग है। बाय द वे आई एम टॉकिंग अबाउट सेल ही है, सेल्स, राइट? दिस इज लेकिन आल्सो करेंसी, क्योंकि ये भी ट्रांजैक्शनल है। फ्री में बांटते हो क्या? सेल 0 दिखाए और क्वांटिटी 10 दिखाए, चलेगा? विल दिस वर्क? बट इट वर्क इज होगा इफ टोटल यू ऑफ आर अंबानी। सेल। ओके, नो, दैट विल आल्सो बी पॉसिबल, ये सेल्स नंबर भी हो सकता है इफ यू आर अंबानी, है ना? जियो 1 साल फ्री मिला था ना? गुड, बट होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। दिस इज अ करेंसी। यू डेफिनेटली यूएस का डेटा सेट है, ओके? तो ये डॉलर में आना चाहिए, तो यू कैन सिलेक्ट अप्रोप्रिएट डॉलर। यहाँ से कोई कंट्री वगैरह, ओके, आई विल सिलेक्ट एनी डॉलर, बट होप यू अंडरस्टैंड। ये देखिए ऐसा, राइट? सो दिस इज अ करेंसी। देन क्वांटिटी क्या आएगा? नंबर, राइट? क्वांटिटी इज अ नंबर। फॉर्मेट सेल्स एंड नंबर, ओके, है ऑलरेडी। चलो, देन डिस्काउंट क्या आएगा? डिस्काउंट, आप जब शॉप में जाते हो तो क्या लिखा रहता है वहां पे? डिस्काउंट इज 0.1,
यस परसेंटेज परसेंटेज रहता है ना, एंड ये परसेंटेज कैसे आता है, एक्चुअल माइनस उनका जो भी डिस्काउंट देना है वो, राइट। तो सिलेक्ट, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स एंड परसेंटेज, राइट, आ गया परसेंटेज, राइट। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये चेंज हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे देखिए हो सकता है प्रॉफिट कैन बी परसेंटेज, बट यहाँ पे देखिए क्या है, डेटा अंडरस्टैंडिंग कल किया होगा तो ये समझ में आएगा क्या है ये, करेंसी, नंबर, परसेंटेज क्या है, ये क्या था, करेंसी करेंसी, तो ये में क्या होना चाहिए, करेंसी currency. सो दैट इज व्हाई डेटा अंडरस्टैंडिंग इज इम्पोर्टेंट। कई कंपनी में परसेंटेज भी हो सकता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, कैलकुलेशन कीजिए कहाँ पे क्या कैलकुलेट हो रहा है, वो क्या लिखा है, राइट, सो दैट यू कैन इजीली फाइंड अ करेंसी। डॉलर में आएगा, चलो। देन शिपिंग कॉस्ट, कुरियर का जो ये लिखा है क्या है, ये करेंसी, राइट, Currency. गुड। देन आखिरी वाला क्या आएगा, टेक्स्ट, Text. राइट, गुड। होप यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट वी डिड। सिमिलरली होमवर्क कीजिए, होमवर्क में और डेटा सेट्स है, एक्सप्लोर ऑल द फाइल्स, उसमें 5-6 फाइल है, हर एक फाइल में अलग अलग डेटा सेट है, हर एक डेटा सेट का डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा फॉर्मेटिंग आपको करना है। क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन? Sure. ऑनलाइन समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट स्टेप, और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, डेटा फॉर्मेटिंग में ही एडिशनल फॉर्मेटिंग एक करना पड़ता है जो एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है, ओके, दैट इज नॉट अवेलेबल इन एनी अदर डेटा टाइप्स, बट एक्सेल आपको प्रोवाइड करता है। कैसे, लेट मी शो यू। मान लो हमें क्या करना है, आई वांट टू फिल्टर दिस, मतलब जो सेल्स है उसे अरेंज करना है हायर टू लोअर, डिसेंडिंग, ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कैसे करते हैं, जनरली यू गो टू डेटा, सिलेक्ट सम फिल्टर, ये फिल्टर आइकन है यहाँ पे, वो सिलेक्ट कीजिए एंड देन सिलेक्ट दिस, और यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, नहीं तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, राइट। पूरा डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको एक्चुअली, ये वाला। द मोमेंट यू डू इट, ये कुछ देखिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो गया। नाउ सिलेक्टिवली ये भी चेंज हो रहा है, राइट। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ ये चेंज किया तो यही चेंज हो रहा है, बाकी जैसे थे वैसे रहे हैं, ऐसा नहीं ना, पूरा डेटा सिलेक्ट हो रहा है, राइट। क्लियर, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज आई हैव डन अ फॉर्मेटिंग, इसे बोलते हैं टेबल फॉर्मेटिंग। ये दिख रहा है ऊपर टेबल डिजाइन करके आ रहा है यहाँ पे, ये देखिए टेबल डिजाइन। इफ आई क्लिक आउटसाइड, ये देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये चला जाता है, ये इसके अंदर क्लिक करता हूँ तो ये आ जाता है। दिस इज कॉल्ड अ टेबल डिजाइन। और ये फंक्शनैलिटी जो आपने अचीव किया, द मोमेंट यू फिल्टर ओनली वन, सारे वो फिल्टर सारे रिकॉर्ड्स पे वो लग गया। ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता। बाय डिफॉल्ट कैसे होता है, लेट मी शो यू। ठीक है, ये इस पे कुछ नहीं है, एंड देन आई एम फिल्टरिंग द डेटा। मान लो इससे मैंने फिल्टर कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए ये कुछ पूछता है, ऐसा मैंने चेंज कर दिया, ओके। ओके, इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है, इवन दो इफ यू मान लो अभी ये 811 है, तो ये सिर्फ कॉलम चेंज हो रहा है, इफ यू आर ऑब्जर्विंग, ये डेटा चेंज नहीं हो रहा है, साइड का डेटा, ये डेटा चेंज नहीं हो रहा है, ओके। सो दिस इज अ डिफॉल्ट बिहेवियर, ये एक्सेल में बाय डिफॉल्ट होता है, वो सिर्फ एक ही कॉलम को चेंज करता है। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पूरा एक रिलेशन है ना, मतलब ये जो प्रोडक्ट नेम है उसी का ये सेल्स है, उसी का ये क्वांटिटी है, उसी का ये एग्जांपल है, और उसी से रिलेटेड ये सारे इंफॉर्मेशन भी है, डेट है, कंट्री, रीजन। तो द मोमेंट मैं कोई भी कॉलम मॉडिफाई करूँ इसमें से, वो मॉडिफिकेशन सारे कॉलम में होना चाहिए, ना कि एक ही कॉलम में, राइट। तो इसे अचीव करने के लिए आई नीड टू बिल्ड अ रिलेशन बिटवीन दिस डेटा। अलग अलग कॉलम के बीच में रिलेशन बिल्ड करना है, मतलब ये कॉलम इसके साथ ये सारे एक के साथ एक कंबाइन होना चाहिए, सो दैट मैं एक भी चेंज करूँ तो सारे चेंज होने चाहिए, राइट। तो इसे करने के लिए देयर इज अ समथिंग कॉल्ड टेबल डिजाइन, ओके। लेट मी शो यू कि क्या है।
फॉर एग्जाम्पल इफ आई सिलेक्ट दिस डेटा, कॉपी इतना ही सिलेक्ट करके एक नए शीट में आपको एक एग्जांपल दिखा था क्या. सो दिस इज अ डेटा, सॉरी, देखिए ये आपका डेटा सेट है. ओके, इस डेटा सेट को आपको रिलेशन बिल्ड करना है, राइट. तो क्या कर सकते हैं आप, इधर यू सिलेक्ट दिस एंटायर डेटा, गो टू होम, सॉरी इंसर्ट ऑप्शन, और यहाँ पे टेबल नाम का एक डेटा टाइप आपको मिलेगा. ये देखिए यहाँ पे इंसर्ट में टेबल. तो मोमेंट यू क्लिक इट विल आस्क कि कौन कौन सा है. ये बॉर्डर आपको दिखेगा, देखिए डॉटेड बॉर्डर दिख रहा है, ग्रीन कलर का डॉट. तो ये क्या करता है, ये पूरे डेटा को कंबाइन करता है और एक टेबल क्रिएट करता है. देखिए क्रिएट टेबल. ओके, हेडर है आपके कॉलम को, हेडर मतलब यहाँ पे जो ऊपर टाइटल लिखा है वो है तो यहाँ पे टिक कीजिए, नहीं है तो वो निकाल सकते हैं. ओके, प्रेस ओके. तो ये ऐसे आप कलर कोडिंग में आ जाएगा. ऊपर एक टेबल डिजाइन नाम का एक टैब ओपन होगा, हर एक अलग अलग ऑप्शन के साथ अलग अलग टैब ओपन होता है. ओके, देखिए नाउ वट एवर मॉडिफिकेशन यू डू वो अक्रॉस द डेटा होगा. मतलब कुछ भी आप चेंज करो, फॉर एग्जाम्पल लेट मी ऑर्डर द डेट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, पूरा डेटा चेंज हुआ. होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. पहले सैमसंग था, अभी एक्रो स्टैकिंग बिन्स आया है, राइट. लेट मी मॉडिफाई लाइक स्टोरेज कैटेगरी A to Z. ये देखिए ए एप्लीकेशन से आया, बी चेयर, उसके साथ ये भी चेंज हो गया, उसके साथ ये भी चेंज हो गया, राइट. तो ये एक डेटा टाइप है जो आप यूज कर सकते हो फॉर अ प्रॉपर डेटा हैंडलिंग. जो भी आप कैलकुलेशंस करोगे, जो भी चेंजेस करोगे, वो प्रॉपर करने के लिए यू कैन यूज अ डेटा फॉर्मेट लाइक दिस. क्लियर, अंडरस्टूड एवरीवन? डेटा फॉर्मेटिंग क्लियर है. इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे हम जब आप आगे के स्टेप्स परफॉर्म करोगे. स्लोली यू विल स्टार्ट बिल्डिंग इट. मतलब इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग वगैरह. ओके, समझ में आया ऑनलाइन? यस सर. Sir. Yes, sir. Any doubts, any questions? Yes, sir. Yes, if you have any questions, maybe you can ask now. Sir, I have a question. Sir, as product ID have both numbers and alphabets, how can we format sir that in which category? So generally if you not sure कि क्या फॉर्मेट करना है, इसे एज अ जनरल फॉर्मेट आप कर सकते हैं. वैसे अनलेस एंड अनटिल यू नो कि इसका डेटा टाइप क्या है, इसे कहीं पे यूज करना है कैलकुलेशन में वगैरह, तो आप कस्टम फॉर्मेट कर सकते हो. नहीं, कहीं पे यूज नहीं करना है, सिर्फ फिल्टर वगैरह लगाना है, तो टेक्स्ट आप क्रिएट कर सकते हो. टेक्स्ट नहीं तो जनरल. ओके, क्लियर? Okay, sir. Yes. क्लियर एवरीवन? दो स्टेप्स आपके एनालिटिक्स के क्लियर है क्या? गुड. आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या बहुत सिंपल चीजें पढ़ा रहे हैं, राइट. इट इज टू इजी, कुछ करना नहीं है, राइट. बट ट्रस्ट मी, कल से जो शुरू होगा दैट विल बी अ मोर चैलेंजिंग पार्ट, जहाँ पे आपको इंटेलेक्चुअली सोचना पड़ेगा, राइट. सोचना पड़ेगा कि ये क्या है क्या नहीं है. आपका ऑब्जेक्टिव है कि ये डेटा को एनालाइज करके बिजनेस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना. कोई भी बिजनेस हो सकता है, ओके. उसके अलग अलग इंसाइट्स देना. इंसाइट्स मतलब इसमें क्या दिख रहा है आपको. आई कैन इजिली सी वन इंसाइट व्हाट आई कैन गिव इट. मान लो मेरा एक पूरे एक महीने का मैंने आपको डेटा दिया है, तो आप क्विकली यहाँ पे समेशन करके बता सकते हो कि टोटल सेल्स आपके इस महीने का 45,000 है, राइट. ऑन एन एवरेज सेल्स 2,000 रुपए है, समथिंग लाइक दिस. दिस इज कॉल्ड अ क्विक इंसाइट्स. इंसाइट्स है ये. कल इसे ही हम थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे. इंसाइट्स कल से थोड़ा आपका एक्चुअल जॉब का काम शुरू होगा. ये तो थ्योरी हो गया जहाँ पे आपने कुछ किया है, राइट. अप्लाई मतलब फिल्टर लगाओ, ये करो, वो करो, डेटा आइडेंटिफाई वगैरह. बट कल से आपको थोड़ा इंटेलेक्चुअली सोचना पड़ेगा एज अ बिजनेस ओनर. मान लो कल ये आप ही का बिजनेस का डेटा है, उसे आपको इम्प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको सोचना है, राइट. सिमिलरली HR का जो डेटा सेट था,
ओके, जस्ट अ सेकेंड, विल कम बैक टू क्वेश्चन। एचआर का जो डेटा सेट था उसे में आपको इंसाइट्स फाइंड आउट करने हैं। क्या इंसाइट होगा एचआर के डेटा में? कौन से हेलो डिपार्टमेंट में प्रदीप। कितने एम्प्लॉइज है, हेलो हाईएस्ट सैलरी किसका है। यस, जस्ट अ सेकेंड, हेलो। विल कम बैक टू क्वेश्चन एंड आंसर, लेट मी कंप्लीट। ओके, क्वेश्चन एंड आंसर क्या होगा, सॉरी, एचआर के डेटा में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, कौन हाईएस्ट सैलरी, किसका हाईएस्ट सैलरी है, नहीं, मैं कौन मुझे से एक क्वेरी डिपार्टमेंट। था कपिल सर। ओके, या कंटिन्यू। हम कंफर्म कैसे करेंगे कि हमारा डेटा पूरा फॉर्मेटिंग कंप्लीटेड हुआ है, सो वी कैन फर्दर प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। ओके, आपने कंफर्म वगैरह ऐसा, व्हाट यू कैन डू इज, इधर जब आप सिलेक्ट करते हो यू नीड टू मेक श्योर कि आपने पूरा डेटा सिलेक्ट किया है। वंस यू सिलेक्ट देन राइट क्लिक, यू कैन फॉर्मेट। ओके, नहीं नहीं, ये नहीं, ये पूरा शीट अपना पूरा डेटा फॉर्मेटिंग कंप्लीटेड हुआ है, मतलब ओके, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, ऑल इन जनरली ऐसा गुड एंड कुछ, अप्रोप्रिएट फॉर्मेट। ओके, ऐसा कुछ सिलेक्शन सो कोई क्राइटेरिया नहीं है इसके लिए। नहीं, ऐसा कुछ एरर दिखाता है कि आगे कि ये ऐसा ऐसा फॉर्मेट गलत चेंज किया। नहीं नहीं, ऐसा एरर हैंडलिंग वगैरह नहीं है इसमें। देयर इज नथिंग एरर इन दिस, मतलब आप कुछ भी करोगे तो एरर नहीं आएगा। ये एक ड्रॉबैक है एक्सेल का। जनरली आप जब पाइथन एसक्यूएल में ये करोगे ना तो वहां पे एरर आएगा। इवन पावर बीआई भी आई गेस एरर देता है। मान लो आपके डेटा में ना यहाँ पे सेल्स नंबर की जगह टेक्स्ट है और आप उसे नंबर फोर्स कर रहे हो तो एरर आते हैं अलग अलग टेक्नोलॉजी में, बट एक्सेल इतना मैच्योर नहीं है, तो इसलिए इसे एज अ पीओसी और एक प्रूफ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, डेमो देने के लिए एक्सेल यूज किया जाता है। प्रोडक्शन में कभी एक्सेल यूज नहीं होता। ओके, तो इसमें अलग अलग कैपेबिलिटीज उतना है नहीं है। ओके, नहीं, इधर इधर ना अभी 15 से 20 कॉलम है, इसलिए हम हाँ हाँ, इजीली देख सकते हैं कि ऑल यस इन अप्रोप्रिएट फॉर्मेट। बट यस जो अलग डेटा, बिग डेटा में कैसा रहेगा, एक 200 या 100 कॉलम रहेंगे, यस तो हर कॉलम अपन देख नहीं सकते कि करेक्ट फॉर्मेट में है या नहीं। यस, तो तो उस केस में जनरली क्या होता है ना, जो आपके काम के कॉलम है उसे बाहर निकालिए एंड देन डू द फॉर्मेटिंग। ओके, इंस्टेड ऑफ ओके डूइंग ओके एवरीथिंग ऐसे। ओके। मतलब पूरे 200 कॉलम में तो आप एनालिसिस नहीं करोगे, यू विल शॉर्टलिस्ट ये 10-15, तो उतना ही कॉलम निकालिए, उसका अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेटिंग कंटिन्यू ठीक कर सकते। ओके, ठीक था। Sir, hello. हाँ, यस, Can you please share those data sets in this chat because I'm not in that group. okay, I guess you can check with the admin, somebody from the admin can share you. Okay, Okay. ओके देन, सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन। कल हम और थोड़ा आगे जाके इनसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि इस बिजनेस को लेके हमें क्या इनसाइट्स देने। फॉर एग्जांपल, इफ आई एम ओनर, मैं एक कंपनी का ओनर हूँ और मैंने आपको डेटा दिया है पिछले 2 महीने का, तो मुझे आप क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हो, इसके बारे में आप हम लोग पढ़ेंगे। आई एम मोर इंटरेस्टेड इनटू मेरा क्या सेल था, बढ़ गया था, नहीं था, कम हुआ, ज्यादा हुआ, इतने प्रोडक्ट अच्छे चल रहे, इतने नहीं चल रहे, वट एवर द इनसाइट्स जो आप एज अ बिजनेस ओनर को बताएंगे। ओके, इसके बारे में हम कल देखेंगे। सो मेक श्योर कि यू कम विद दैट माइंडसेट कि जहां पे आपको सोचना है कि इफ एनी डेटा, जो भी डेटा आपको दिया जाएगा, ये डेटा को मैं कैसे एज अ बिजनेस सोच सकता हूँ एंड आई कैन इम्प्रूव दिस। ओके, क्लियर, good then, so thank you, thanks a lot everyone. So assignment is you need to complete data understanding, data formatting for all the data sets. जो गूगल ड्राइव में जो लिंक दिया है आपको, उस ड्राइव के अंदर और सारे बहुत सारे डेटा सेट्स है, उसके अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर्मेटिंग आपको कंप्लीट करना है। ओके, क्लियर, थैंक यू। ओके, गुड।